Good morning, sir. सभी लोग सबसे पहले अपनी कमेंट कर दीजिए बेटा, प्रेजेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में जो चैप्टर मैंने आपको शो किया वो चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ छोटी छोटी वीडियोज हैं, दो दो वीडियो हैं, उनको देखना है। उसके बाद एक एक्टिविटी है वो करनी है, ठीक है। तो अपने नोटबुक अपने साथ में रखिए और ये चैप्टर है इसको साथ में रखिए। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन शो हो रही है सभी को? No, sir. No, sir. No, sir. ओके No, sir. ओके बेटा, ओके। अब देखिए, अभी हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। फोन से भी होती है, एक वीडियो दिखाई जा रही है फोन में। अरे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें। एक मिनट रुकना बेटा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, अब हो रही है। यस, अब सभी को दिखाई दे रहा है यूट्यूब? Yes, sir. आराम से इसको पढ़िए, देखिए। उसके बाद में हम एक वीडियो और देखेंगे, छोटे छोटे वीडियोज हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। Hello my dear children, welcome back to my SST class. Today we are going to discuss the 5th chapter of your civics book, and that is Women Change the World. So what will we study in this chapter? This chapter tells us about the struggle of women for education through accounts of different people. It also tells us about common stereotypes in men and women. Okay, so let's start with the first topic, fear opportunities and the rigid expectation. So when we talk about the job category among the men and women, people think that men and women are meant to do the specific works. Just like the housework are done by only women,
or outside works are done by men only, isn't it? When we think about any farmer or a pilot or the driver or any kind of factory work, the first image in your mind should be like the male, isn't it? यस। सर आवाज इको हो रही सर है। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। सर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा इधर तो। बेटा आप ना एक तो अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक यस है। सर। और मैं इसी वजह से देखो मैंने अपने मोबाइल से भी इसको जोड़ रखा है, ऐड कर रखा है, केवल इसी वजह से कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। तो आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। सर आपके माइक में आवाज आ रही सर, इको हो रही है बहुत ज्यादा। ओके चलो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, है ना। यस सर। Hello, my dear children. Welcome back to my SST class. Today, we are going to discuss the fifth chapter of your civics book, and that is Women Change the World. So, what will we study in this chapter? This chapter tells us about the struggle of women for education through accounts of different people. It also tells us about common stereotypes in men and women. Okay, so let's start with the first topic, fear opportunities and the rigid expectation. So when we talk about the job category among the men and women, people think that men and women are meant to do the specific works. Just like the housework are done by only women or outside works are done by men only, isn't it? When we think about any farmer or a pilot or the driver or any kind of factory work, the first image in your mind should be like the male, isn't it? When we think about nurse, our mind always follow the female image. The reason we did this is because we believe that people belonging to particular groups based on religion, language, wealth are bound to have certain fixed characteristics, can do only fixed work. And this fixed image about the particular person is called stereotyping. But my dear students, some exceptional examples against stereotypes also are there. Usually engine drivers are men, but 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Let's move on to our next topic, and that is for change. For to engine learned work with family and learning emerged. But remember, there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made effort to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. There were various examples about scholars who played a vital role in educating the women, or we can say that enlightening the women education. Some of the examples are there in your book. First example is about Ramabai. Ramabai, known as Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women there were not allowed such knowledge. She went on set up a mission in Keragaon near Pune in 1898 where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. Second example is all about Rashundari Devi, who was born in West Bengal. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jiban is the first known autobiography written by an Indian woman. Rashundari Devi was housewife from a rich landlord's family. At the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage.
The next example is all about the Rukia Shekhaut Hussain. She was born into a rich family who owned a lot of land. Though she knew how to read and write Urdu, but she was not able to read and write Bangla and English. But later on, Rukia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905. The story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had to freedom to study, work, create inventions like controlling rain from clouds and flying air cars. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day, the school is still functioning. So these are some remarkable examples for bringing around the women literacy. So my dear students, that's enough for today's class. We will meet in our next class. Till now, bye and happy learning. Hello my dear students, welcome to my SST class. To continue the chapter 5 from the civic side, Women Change the World. Let's recall the previous learning. In previous class, we have discussed the topic first, fewer opportunities and rigid expectations, and topic 2, learning for change. Let's start with third topic, and that is schooling and education today. Many boys and girls attend school today, but there still remains a difference in education levels of boys and girls. According to 1961 census, about 40% of all boys and men were literate compared to just 50% of all girls. In 2001 census, this figure have grown to 76% for boys and men and 54% of girls and women. But the percentage of the male group is still higher than female group. The dropout rate, you know what is the meaning of dropout? Means जो school छोड़ के जाते हैं उसको dropout बोलते हैं. सर So the dropout rate of girls is very high. यस सर हमें इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा. एक बार वीडियो को देखिए बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा. यस सर. high, especially in the rural area. This is due to the circumstances and attitude of the family and society. Girls are expected to take care of house and their siblings and elders. An immense number of SC/ST youngsters leave school at an early age. The 2001 census also shows that Muslim girls are less likely than Dalit girls to complete primary schools. Many reasons like non-availability of teachers and school, lack of transport, cost of education, mindset of teachers and parents are responsible for the negligence of education in Dalit, Adivasi and Muslim community. Let's move on to the next topic, and that is women's movement. Now women and girls have a right to go to school. There is a change in scenario that existed many years ago. This change has not happened overnight. It is a result of the continuous struggle and efforts by women individually and collectively. This struggle is called the women's movement. Many women's organizations from different parts of the country as well as individual women are a part of this movement. This movement has the support of many men also. Even in other spheres like legal reform, violence, and health, the condition of women has improved. Various strategies and methods are used for spreading awareness, fighting discrimination, seeking justice. Now, we are going to discuss some of the strategies which are very useful for women's movement. So, first one, campaigning. You know this term campaigning? Campaign means a set of planned activities. So, campaigns to oppose discrimination and look for justice are an integral part of the women's movement. The impact of the campaign is implemented by passing of new laws,
guidelines against sexual harassment, and amendment in dowry laws. So, what is the meaning of passing of new laws? New laws have been passed as a result of campaigns. In 2006, a law regarding domestic violence was passed. This law gave legal protection to women who faced physical and mental torture at home. Second one, guidelines against sexual harassment. In 1997, the Supreme Court passes guidelines to protect women from sexual harassment at workplace and within educational institution. Now last one, amendment in dowry laws. You know what is the meaning of dowry? Dowry means an amount of money or property which a woman family gives to the man she is marrying. It is called dowry. हिंदी पे आप इसको दहेज भी बोलते हो. So in the 1980s, there was a nationwide campaign against dowry deaths. Women groups spoke against the failure to take action against the people responsible for dowry deaths. They took to streets, approached courts, etc. This issue hence gained importance and became an important matter in the newspaper and in the society, hence leading in the changes in the society. Now we are going to discuss the second strategy, and that is raising awareness. The first step in addressing any issue is to raise public awareness about it, isn't it? So the women's movement did the same and spread the message through street plays, songs and public meetings. The next one, protesting. When any violation against women take place, the women movement raises its voice against it. Some popular and effective ways of drawing public attention to injustice are public rallies and demonstration. Now we are going to discuss the last segment, or we can say the last strategy, and that is showing solidarity. What is the meaning of solidarity? Solidarity means to support of one group of people for another. It is called solidarity. Okay, so showing solidarity with other women and causes is also a part of the women's movement. Just like women hold up candle to show solidarity between the people of our country and Pakistan. Every year on August 14, many people gather at Wagah border and hold a cultural program. So my dear students, now we have to discuss some important keywords, or we can say glossary from your book. So first one, stereotype. So stereotype already we discussed in class 6. Stereotype means when we believe that people belonging to particular groups based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work. We create a stereotype, isn't it? So second one, discrimination. When we do not treat people equally or with respect, we are indulging in discrimination. It happens when people or organizations act on their prejudice. What is the meaning of prejudice? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Discrimination usually takes place when we treat someone differently or make a distinction. Violation, when someone forcefully breaks the law or a rule of openly shows disrespect, we can say that he or she has committed a violation. Sexual harassment, this refers to physical or verbal behavior that is of a sexual nature and against the wishes of a woman. Okay, so my dear students, that's enough for today's class. We'll meet in our next class. Till now, bye. Happy learning. यस अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये वीडियो समझ में नहीं आए? सर थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ नहीं आया. ओके, सर हमें आ गया. वेरी गुड. और सर थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यही कहना चाहते हो ना? यस Yes. सर. यस सर. Yes, sir. थोड़े को अब हम पूरा करते हैं. ठीक है, देखो आप अपने चैप्टर निकाल के रखिए, बुक निकाल के रखिए. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता दीजिएगा मुझे कि हाँ सर स्क्रीन शेयर हो रही है. हो रही है? यस सर. ओके, देखिए हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसका मतलब है वुमेन चेंज द वर्ल्ड, यानी महिलाएं
संसार को बदलती हैं या बदल रही हैं, इसका मतलब ये है। अब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि महिलाओं की क्या पहचान है समाज में, उसको केवल हाउस वाइफ के रूप में देखते हैं। फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो फुल टाइम वर्क करते हैं, लेकिन जब भी देखो आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूं ना तो ऐसे पूछा जाता है कि आपके पापा क्या काम करते हैं, तो आप कहेंगे पापा टीचर हैं, पापा डॉक्टर हैं, पापा इंजीनियर हैं, पापा बिजनेसमैन है। और मम्मी के बारे में पूछा जाता है तो मोस्टली बच्चे ऐसे कहते हैं मम्मी कुछ नहीं करती सर। ये जो भावना है, ये जो स्टीरियोटाइप है, इसको बोलते हैं हम वुमेन्स को ये समझते हैं कि वुमेन्स कुछ नहीं करती हैं, घर में रहती हैं, उनको हाउसवाइफ कहा जाता है। लेकिन क्या बदला है वुमेन्स ने, और उनकी सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। यस सर। है कि बेटा आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करिए। आपको आवाज अच्छे से आएगी। मैंने अपने देखो मोबाइल से ऐड कर रखा है और मेरे मोबाइल में अच्छी आवाज आ रही है। जिनको वॉइस में प्रॉब्लम है वो वापस से जो ज्वाइन हुई है लेफ्ट करके। अब देखिए ठीक आवाज आ रही होगी, जो ठीक आ रही है। Yes, yes, यस सर। yes, sir. चलो देखिए, अब हम बात करना चाहते हैं वुमेन्स कैसे संसार को बदलती हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारे सामने जो वुमेन्स के लिए चैलेंज होता है वो है डिस्क्रिमिनेशन। समाज में, सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, जहाँ एक तरफ मैन है और एक तरफ वुमेन है। तो मैन को हम पावरफुल समझते हैं और वुमेन को हम वीक समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी कह रही है, जो हम हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं। इन दोनों में बहुत मतभेद है। कैसे है आप जरा सा इससे समझिएगा। एक फार्मर, अब बताते जाइए मुझे, एक एक बताते जाइए। एक फार्मर, जब आप अपने देखिए, जैसे ही फार्मर का नाम आता है तो आपको क्या लगता है कौन है वो, मेल है या फीमेल है? मेल। मोस्टली मेल। ओके, फैक्ट्री वर्कर में किसकी होगी? मेल होगा। Male. आप बताइए। नर्स का नाम आएगा तो कौन होगा? Sir, Female. साइंटिस्ट Sir, male. मेल। इसमें तो हमें किसी इसमें मोस्टली हमें फीमेल भी देख सकते हैं और मेल भी देख सकते हैं। पायलट, पायलट Sir, male, female दोनों. मोस्टली मेल होगा। टीचर, टीचर सर दोनों। Sir, both. Sir, both. अब देखिए, आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि एक फार्मर एक महिला भी हो सकती है। नहीं कहा ना किसी भी। फैक्ट्री वर्कर की बात हुई तो वहां भी ये नहीं कहा आपने कि कहा कि फीमेल होगी। Why are you saying that a nurse will be a female, not a male? This type of thinking called as stereotype. इसे कहा जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए, पर्टिकुलर किसी जाति के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हम जो सोच हमारे माइंड में पहले से एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसको डिसाइड कर लेते हैं, उसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है। एक एग्जांपल और देखिए। चलो, ये एक्टिविटी है, सी व्हाट इमेज योर क्लास drew by filling in the table below and up the number of male and female images separately from each occupation. अब देखो, यहाँ आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है टीचर में आप क्या मानते हैं, मेल और फीमेल। मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, आप भी खुद भी जवाब दीजिए। फार्मर में आप किसको मानते हैं? केवल मेल को। सर हम दोनों सर हम मेल को मानते हैं। मेल को मानते हैं। फैक्ट्री वर्कर्स में किसको मानते हैं? हम मेल। सर फीमेल को। फार्मर में तो हमारे में माइंड में दोनों आते हैं। यस सर, फार्मर
चलो सर, पर ये मान फैक्ट्री लेते हैं कि वर्कर आप दोनों ही मान, हाँ फैक्ट्री वर्कर में आप केवल मेल को मानते हैं ना, वुमेन को नहीं मानते हैं। यस सर। ओके, नर्स में सर मेल नर्स मेल ज्यादातर मेल को ही फीमेल को मानते हैं। केवल फीमेल को ही माना जाता है, मैक्सिमम। ओके, साइंटिस्ट में सब मेल। मैक्सिमम तो मेल। मेल और फीमेल लगभग, हाँ दोनों मान सकते हैं। पायलट में सब पायलट सर दोनों। दोनों। सर दोनों। ओके, वेरी गुड। अब देखो अब इस बात को समझते जाइए। ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमारी थिंकिंग्स, हमारे थॉट्स इन चीजों को बहुत पहले से डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री वर्कर्स में केवल मेल को ही मान रहे हैं। क्या हम ये समझते हैं कि वुमेन्स अपने आप में वीक होती हैं, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती हैं। हम ये मानते हैं कि नर्स का काम बेहतर तरीके से एक वुमेन ही कर सकती है, फीमेल ही कर सकती है, मेल नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि अब से पहले हमारे क्या कंडीशन रही है। रोजी मैम थी, उन्होंने अपनी क्लास में ये एक्सरसाइज करवाई, तो देखो क्या जवाब आया। टीचर के बारे में पूछा तो 5 बच्चों ने टीचर में मेल को कहा, 25 बच्चों ने फीमेल कहा। देखो कितना सरप्राइजिंगली ये थिंक हुआ। फार्मर के बारे में पूछा तो 30 के 30 ने केवल मेल को ही बताया, जीरो आया फीमेल में। फैक्ट्री वर्कर की बात हुई, 25 बच्चों ने कहा कि मेल होते हैं, लेकिन 5 बच्चों ने यह भी माना कि फीमेल भी होती हैं। नर्स में किसी ने भी मेल को नहीं माना, जबकि 30 के 30 बच्चों ने क्या माना कि वो केवल फीमेल हो सकती है। साइंटिस्ट में भी देखो 25 को मेल और 5 को फीमेल, पायलट को 27 और 3 केवल फीमेल। इस एक्टिविटी से हम ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं। उसका एक एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन भारत में जितनी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनमें से 83% जो महिलाएं हैं वो खेती का काम करती हैं, वो एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज्ड हैं। इसके अलावा देखो उनके काम बता रहा हूं यहाँ, प्लांटिंग करती हैं, वीडिंग करती हैं, हार्वेस्टिंग होती है और थ्रेसिंग होती है। जब आप गांव में देखते हैं तो गांव में आदमी के साथ साथ महिलाएं बराबर की भागीदारी निभाती हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। इतना होने के बाद भी हम जब फार्मर की बात करते हैं तो यहाँ देखो आप, जब हम फार्मर की बात करते हैं तो केवल हम मेल को ही मानते हैं। ऐसा क्यों? इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखो, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। फ्यूअर का मतलब कम से कम, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। महिलाओं के लिए बहुत कम अवसर दिए जाते हैं, और रिजिड का मतलब होता है कठोर। उनसे बहुत कठोर आशा की उम्मीद नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं मानते हम कि फीमेल कठोर मेहनत कर सकती हैं या ऐसे काम कर सकती हैं। तो हम दोनों चीज मान रहे हैं यहाँ, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। हम उनके लिए ये मानते हैं कि उनको अवसर कम मिलते हैं, और उनके साथ हम कठोर आशा नहीं रख सकते हैं, उनको हम वीक समझते हैं। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर जो अभी पंजाब में आंदोलन हो रहा है उसमें भी जो वुमेन्स है वो ही खेती का काम देख रहे हैं और जो मेल है वो सब पूरा आंदोलन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन के समय में ही। आप नॉर्मली जब देखते हैं ना तो खेती में बराबर पार्टिसिपेट करती हैं, बराबर इंगेज्ड हैं महिलाएं भी। तो इसको पढ़िए, सर, हमने देखा रोजी है। मैम ने जब ड्रॉ किया। हाँ बिल्कुल बेटा, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, महिलाएं बहुत काम करती हैं, खेती में भी काम करती है, घर का भी काम करती है। यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कि घर का काम करने के बाद वो दिन भर अपना काम खेत में निपटाती है ना। अब Yes, इस चीज sir. को आपको यहाँ समझना है, यहाँ इसको पढ़ के देखना है और इस बात को समझना है। रोजी मैम ने अपने बच्चों से ड्रॉ करवाया, वुमेन को उन्होंने नर्स बताया, मैन ने आर्मी ऑफिस आया। दे फील दैट आउटसाइड द होम टीम। क्या हुआ सर बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है और कट भी रही है। और सर एकदम से जैसे जब आवाज आने लग रही है तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रही है। हाँ तो आप है ना बेटा अपना माइक म्यूट रखिए, और जब आपको बोला जाए ना तो इससे क्या टेक्निकल इश्यू बन जाता है, आप अपना माइक म्यूट रखिए।
मैं अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ। रोजी मैम ने जब अपनी क्लास में देखा कि बच्चे जब नर्स की बात कर रहे हैं तो वुमेन बता रहे हैं, और जब आर्मी ऑफिसर की बात हो रही है तो उनको मैन बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि हमसे जो घर के बाहर के जो काम हैं वो वुमेन्स अच्छे से नहीं कर पाती हैं। वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, यानी महिलाएं हैं जो कुछ ही जॉब में अच्छे से सरवाइव कर सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नर्स का काम है तो वो महिलाएं अच्छे से कर सकती हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे आर मोर पेशेंट, यानी उनमें पेशेंस है ना, उनमें धैर्य है। और दूसरा जेंटल, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा सज्जन होती हैं, है ना, ज्यादा उनका सॉफ्ट बिहेव होता है। दूसरा, दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, ये चीज जोड़ती है परिवार से। एक परिवार को एक यूनिटी में रखने की जिम्मेदारी या यूनिटी में रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक महिला की होती है। और साइंस की बात जहां करोगे तो साइंस में क्या होता है, एक टेक्निकल माइंड चाहिए होता है। गर्ल और वुमेन कैपेबल नहीं है टेक्निकल चीजों को करने में, ये हमारी सोच है, और इसी सोच को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो आप समझ सकते हैं, सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? आप ये कहेंगे ए सेट ऑफ थिंकिंग अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट द फीमेल। अगर फीमेल के प्रति हम एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो भी एक ह्यूमन नेचर है, उसमें भी वो भी एक टेक्निकल चीजों कर सकती है, संभाल सकती है, तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसा कि मैनी गर्ल डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज। कई बार ऐसा होता है कि ये बात सही भी है, परिवार में जब एक लड़का हो एक लड़की हो तो जो लड़के के लिए सपोर्ट मिलता है ना वो एक लड़की के लिए सपोर्ट नहीं होता है। जैसे किसी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भोपाल जाना है, से छिंदवाड़ा जाना है, और एक लड़की को भी जाना है, तो लड़की को नहीं भेजा जाएगा, अक्सर लड़के को भेज दिया जाएगा। ये स्टीरियोटाइप है ना। हम ऐसा समझते हैं कि लड़की अकेली कहीं नहीं जा सकती है। जैसे एक बहुत जाने माने वकील थे, निर्भया कांड हुआ था जो आपने सुना होगा, एक रेप कांड हुआ था दिल्ली में। चलती बस में जब रात को 11-12 बजे वो निर्भया, जो एक काल्पनिक नाम है, वो अपने दोस्त के साथ में फिल्म देख करके, पिक्चर देख करके आ रही थी। तो पता है एक वकील ने क्या कहा? एक वकील ने ऐसे बोला कि रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। उसकी बहुत आलोचना हुई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया उसको। ये कहाँ लिखा हुआ है कि रात को लड़कियां नहीं घूम सकती? उसको अपनी सेफ्टी खुद करनी है ना। ऐसा तो है नहीं है कि केवल लड़के घूम सकते हो, यानी आप लड़कों को तो, बॉयज को तो आप पूरा फ्रीडम दे रहे हो, उनको तो आप सपोर्ट दे रहे हो, और आप गर्ल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। कई बार ऐसा होता है ना, देखो यहाँ पढ़ो आप, स्टडी में जब आप पढ़ाई करने की बात करते हैं या ट्रेनिंग की बात करते हैं कि डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग लेनी है या इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग लेनी है, तो सेम सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि एक बॉयज को मिलता है। मोस्टली फैमिलीज में क्या होता है, वंस गर्ल फिनिश स्कूल, जब वो स्कूल फिनिश करती है तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो शादी करे और शादी करके अपना घर बसाए। उसको ये नहीं कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करिए या आप अपनी प्राइवेट जॉब करिए। अब इसी में आप एक लक्ष्मी लकड़ा को समझिए। लक्ष्मी लकड़ा नाम की एक इंजन ड्राइवर है। ऐसा कहते हैं कि ये बहुत गरीब फैमिली से थी। झारखंड जो हमारे पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, झारखंड बिहार से बना हुआ एक अलग राज्य है। सबसे पहले इसने अपनी चीजों को बदलने, क्योंकि इनकी सोसाइटी में क्या था, इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। इनके जो पेरेंट्स थे वो भी कम पढ़े लिखे, स्ट्रगल किया। और ऐसा कहते हैं कि जहां लड़कियों को, जहां मतलब बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं था, वहां इसने अपनी पढ़ाई जो करी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में करी। यहाँ तक कि स्कूल में भी काम करते हुए उसने हाउस वर्क भी किया, है ना, स्कूल में पढ़ते हुए भी। और कई ऐसे काम किए, ऐसे जॉब किए जो एक लड़की नहीं कर सकती। और देखो आज वो एक, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, आज एक वो इंजन ड्राइवर है। तो क्या आसानी थी इसके लिए इतनी? ये आपको बताया जा रहा है कि जब इसने डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसने रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया और पहले प्रयास में उसने रेलवे एग्जाम का बोर्ड पास किया। लक्ष्मी से पूछा गया तो लक्ष्मी ने कहा, आई लव चैलेंजेस, मुझे चुनौतियां पसंद है या मैं चुनौतियों से प्यार करती हूँ। द मोमेंट somebody says it is it not for girls, कई बार ऐसे क्षण आया मेरे सामने कि मुझे किसी ने ऐसा कहा कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, यानी लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन लक्ष्मी ने आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट, फिर मैंने ये निश्चित किया कि ये क्यों नहीं है मेरे लिए, मैं इसे करूंगी। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ,
और लक्ष्मी ने ऐसा कई बार किया। When she wanted to take electronics, जब उसके साथ ऐसी चीजें कई बार हुई लाइफ में, तो एक चीज बता रही है वो कि जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी, when she rode मोटरसाइकिल, उसने बाइक चलाई, at the पॉलिटेक्निक करते समय उसने बाइक राइडिंग की, when she decided to become an engine driver, उसी दिन इसने ये निश्चित किया कि यदि मैं बाइक चला सकती हूँ तो मैं ट्रेन भी चला सकती हूँ। आज आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सी लड़कियां हैं जो बाइक चलाती हैं और लोग उसको बड़ा सरप्राइजिंगली देखते हैं, ओ अरे वो लड़की बाइक चला रही है, ऐसा क्यों? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज कट रही है। चला सकती है क्या? माना जाता है स्कूटी चला सकती है। नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे तो मेरे मोबाइल में तो अच्छी आवाज आ रही है। सर एकदम से आपकी आवाज बंद हो जा रही है और फिर एकदम से बहुत फास्ट हो जा रही है। यस सर। अच्छा अच्छा, ऐसा बेटा नेटवर्क की वजह से हो सकता है ऐसा। 1 मिनट रुकिए, देखो मैं इसका इलाज करता हूँ। इसके डॉक्टर हम ही हैं और हम ही इसका इलाज करते हैं। 1 मिनट रुकिए बस। अच्छा ये प्रॉब्लम है अभी। सर फिर से आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी ठीक से आवाज, ठीक है? अब यस सर। यस सर। अब ब्रेक नहीं है आवाज। चलो अब हम बात कर रहे थे लक्ष्मी लाकरा की, जो झारखंड की है, 27 साल की लड़की है और इंजन ड्राइवर आर मैन, ऐसा मानते हैं कि इंजन ड्राइवर केवल आदमी हो सकता है। इसने इस बात को गलत साबित कर दिया। नेक्स्ट देखो, जब उससे पूछा जाता है कि आप सोचते क्या है चीजों के बारे में, तो उसने जवाब दिया, देखो बहुत अच्छा जवाब दिया, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, जितना ज्यादा हो हमें बिना किसी का नुकसान किए हुए, बिना किसी की भावनाओं के साथ हम खेलते हुए हमें अपने हिसाब से जीना है। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, जितना हो सके उतना मुझे अच्छा करना है। हेल्पिंग माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता करना चाहिए। तो मतलब वो ऐसा कह सर फिर आवाज चली गई। ये सर फिर से नहीं आ हमारी रही आवाज नहीं आ रही। अपने तरीके से नहीं आ रही। बेटा मेरे को तो इसमें मेरे सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप सब लोग लाइव से ज्वाइन करो। ओके सर। यस सर। आप चेक करते जाओ आवाज आ रही है? सब आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, एक स्टोरी है वो आपको पढ़नी है, जेवियर की स्टोरी है एक, इसको आपको खुद को पढ़ना है। उसके बाद में ये पंडिता रमाबाई है जिन्होंने भी संघर्ष किया है, और इसके बारे में ऐसा कहते हैं वुमेन्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो कभी भी स्कूल नहीं गई, उन्होंने जो भी पढ़ाई करी अपने माता पिता से पढ़ाई की, और ऐसा कहते हैं कि संस्कृत में ये बहुत विद्वान थी इसलिए इनको पंडिता कहा गया था। ठीक है, और इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो इनके बारे में संस्कृत में भी पढ़ा है। हाँ हाँ बोलिए। सर वो इंग्लिश में सर भी हमने इनके बारे में संस्कृत बुक में भी पढ़ा है। हरियाणा की एक थी यस वो सर, संस्कृत की बुक में। मून पे गई थी। यस सर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो ये चीजें सीखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए। अब जो पंडिता रमाबाई है ये संस्कृत की विद्वान थी इसलिए इनको पंडिता कहा जाता था। अब इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, एक महिला होते हुए भी इन्होंने
वो ज्ञान प्राप्त किया जो एक पुरुष होकर के प्राप्त नहीं कर पाया था उस समय। और बाकी सब महिलाएं जहां शिक्षा के लिए तरस रही थी, वहां इन्होंने क्या किया, पुणे में एक जगह है खेड़ा गांव, है ना, उसमें इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था 1898 में। जब ऐसा कहते हैं कि जहां विडो जो महिलाएं होती हैं, जो पुअर वुमेन होती हैं, उनको इन्होंने एनकरेज किया कि आप लोग पढ़ाई करिए और इंडिपेंडेंट बनिए। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, इन्होंने बहुत सारी स्किल्स सिखाई, जैसे कारपेंटरी सिखाई, प्रिंटिंग प्रेस में काम करना सिखाया, उन्होंने खुद प्रिंटिंग प्रेस चलाई, है ना, ये सब काम उन्होंने महिलाओं को सिखाया। गर्ल्स को आज जो जिन गर्ल्स को हम सिखा नहीं पा रहे हैं, वो चीजें उन्होंने उस समय इनको सिखाई। और द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सेंट इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, रमाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। पता है आज भी रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी चल रहा है। ये आप उनका प्रिंटिंग प्रेस देख सकते हैं, ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जो रमाबाई ने एस्टेब्लिश किया था, जहां मोस्टली पुअर वुमेन्स और विडो महिलाएं, जिनके पति की डेथ हो जाती है, उनको विडो कहा जाता है, वो ऐसा हो जाती हैं सोसाइटी में, हमेशा उनकी डिरेस्पेक्ट होता है। तो उन्होंने इनको मजबूत बनाने के लिए, ऐसा कहते हैं ना कि अगर बदलाव लाना है तो सीखना होगा, तो इन्होंने क्या किया, लर्निंग फॉर चेंज। ठीक है, उसके बाद देखो 19वीं सेंचुरी में एजुकेशन का आइडिया आया, बहुत सारी चीजें जुड़ी सीखने के लिए, स्कूल कॉमन हो गई सभी के लिए। कम्युनिटीज में जिन कम्युनिटीज को कभी पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता था, उन्होंने भी उनके बच्चों ने भी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम थी गर्ल्स के साथ, यानी और कास्ट जा रही थी और रिलीजन्स के लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे, बट वुमेन्स को अपोजिट समझा जाता था। कई महिलाएं जिन्होंने अपना प्रयास किया कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूलें खोली जाए, जहां लड़कियां महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ पाएं। उनमें पंडिता रमाबाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा एक नाम आता है रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी जो थी वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और लगभग आज से 200 साल पहले 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन, अमर जीवन को ही बंगाली भाषा में अमर जीवन कहा जाता है। इसमें इन्होंने, इस बायोग्राफी में भारतीय महिला, देखो एक पहचानी गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और एक महिला ने, एक भारतीय सबसे पहले बायोग्राफी लिखी। ओके, और ये जो रस सुंदरी देवी थी, हाउस वाइफ थी और एक अमीर जमींदार के परिवार से थी। उस समय जब ये पढ़ाई, ऐसा कहते हैं जिस समय संघर्ष कर रही थी, तो ये मानती थी कि हर एक महिला को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। कि अगर इनका मानना ये था कि अगर जैसे कोई परिवार है, कोई फैमिली है, उस फैमिली को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी महिलाओं को, उस परिवार की बेटियों को आप पढ़ाइए, तो वो परिवार आगे डेवलप होगा। अब अगर कोई महिला है, जैसे इसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो बन जाती है, तो सोसाइटी में उसका डिरेस्पेक्ट होता है और उसका बहुत ज्यादा अपमान होता है। तो देखो ये कहते हैं, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो। उनके साथ एक बहुत बुरी घटना हुई। कैसे? उनके पति की डेथ हो गई और वो एक विधवा बन गई। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी उसने अपने आप को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सीक्रेट में पढ़ाई शुरू करी। वेल आफ्टर हर मैरिज, कब? जब उनकी मैरिज हुई उसके बाद भी। अब उनका कहना क्या है, इसको पढ़िए। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन and I would still be at it until well beyond midnight। यानी मैंने कभी भी अपना काम नहीं छोड़ा, कभी भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, भले मुझे पूरी रात या आधी रात तक भी पढ़ना पड़े। I had no rest, मैंने कभी रेस्ट नहीं किया। इन बिटवीन, इस दौरान मैंने कभी रेस्ट नहीं किया। I was only 14 years old at that time, और ये समय था केवल 14 वर्ष का। यानी उस समय जो मेरी उम्र थी, मैं only 14th ईयर की थी, 14 साल की थी। I came to nurture a great longing। longing का मतलब एक तरह से हम इन
कहते हैं ना कि पोषण व्यक्ति को नर्चर करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एजुकेशन को हम मानते हैं कि अगर व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो आगे बहुत सारी चीजों को लेकर के चलता है। इनका कहना ये था कि मैंने बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, मेरा मन में भी था कि मैं ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी के द्वारा लिखी हुई, तो धर्म से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी और उसी से आगे फिर इन्होंने सोसाइटी में महिलाओं को आगे बढ़ाया। तीसरा एक नाम और है, रकैया सखावत हुसैन। और इनके जो सपने थे, इन्होंने एक बुक के माध्यम से अपने लेखन के माध्यम से, जिसका नाम था लेडी लैंड। रुकैया जो सखावत हुसैन थी, इनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और उनके पास बहुत सारी जमीन थी। वो ये जानती थी कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उर्दू के बारे में काफी नॉलेज थी, लेकिन उसने ऐसा कहते हैं ना कि वो बंगला और इंग्लिश को पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया। इन दोज डेज, इन्हीं दिनों, इंग्लिश वाज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडियाज। और उसी समय जब ये पढ़ रही थी तो इंग्लिश को ऐसा समझा जा रहा था कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप अपने आइडियाज को एक्सपोज कर सकते हैं कि गर्ल क्या सोचती है। जहां तक कि पीपल्स की बात है तो वो कहते थे कि ये गलत है, ये गलत सोचती है कि इंग्लिश लड़कियां पढ़ सकती हैं। लोग कहते थे कि इंग्लिश लड़कियां नहीं पढ़ सकती, लड़कियां केवल उर्दू पढ़ सकती हैं। क्योंकि ये मुसलमान है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो उर्दू ज्यादा पढ़ना पसंद करती उस समय, लेकिन इन्होंने तो इंग्लिश पढ़ने पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। तो इनकी सोसाइटी के लोग ये मानते थे कि नहीं, मोस्टली जो बॉय हैं वो ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब रुकैया जो थी वो बंगला भी पढ़ना चाहती थी और इंग्लिश भी पढ़ना चाहती थी, और अपने भाई के सपोर्ट से उसने ये काम किया भी। अपनी बड़ी बहन और अपने भाइयों के सपोर्ट से उसने ये काम किया भी, और वह बहुत जल्दी क्या बन गई, एक राइटर बन गई। उसने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्तानास ड्रीम, और ये कब लिखी, 1905 में। और इंग्लिश में उसने बहुत सारी स्किल सीखने की प्रैक्टिस भी की जब वो 25 साल की थी, उस समय की बात है ये। फिर उसके बाद में उसने एक स्टोरी इमेजिन की, एक कल्पना की, एक स्टोरी। और उस स्टोरी में किसकी स्टोरी थी, वो थी सुल्ताना की, जो कि एक जगह पहुंच जाती है और उस जगह का नाम है लेडी लैंड। एक जगह के वो उसने कल्पना की कि एक महिला है सुल्तान, और जो बुक थी उसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज चली गई। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए, अब चेक करिए। जैसे अब अभी सर स्टार्टिंग में सही आ रही है पर बीच बीच में आ रही है ना। यस सर। चलो कोई जस्ट 2 मिनट के और देख लीजिए, इसको आप पूरा पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। और उसके बाद आपको ये पढ़ना है आज के टाइम में स्कूलिंग और एजुकेशन टुडे आज क्या परिस्थितियां है। उसके बाद इस टेबल को पढ़ना। ये ड्रॉप आउट बच्चों की कहानी है। 2015 में ये रिपोर्ट बनाई गई है। 2014 से 15 तक कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ा। जैसे देखो, प्राइमरी क्लासेज में 1 से 5 तक टोटल जो बच्चे थे, ऐसे 4.13% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनमें 4.36% वो बच्चे जो लड़के थे और 3.88% लड़कियां थी। और वो ये आल की बात हो रही है। जब आप SC ST में जाते हैं तो देखो रेशो बढ़ जाता है। 4.13 से कितना बढ़ गया, 4.46। ST में जाते हैं तो 6.93। यहाँ देखो अपर प्राइमरी में कितना है, 4.03। ये आगे बढ़ के SC में कितना हो गया, देखो SC है शेड्यूल कास्ट, ST है शेड्यूल ट्राइब्स, ऑल मतलब सभी, जनरल, माइनॉरिटी, SC ST OBC सब। लेकिन आप जब देखोगे, आप मोस्टली आप ये समझोगे SC और ST की हालत बिल्कुल खराब है, इनसे कई ज्यादा आगे हैं। और देखना चाहते हो तो सबसे बड़ा असर देखो, यहाँ तो जस्ट डबल हो चुका है, 4 से 8 हो चुका है। और यहाँ देखो 17%, जहाँ
टोटल सेकेंडरी यानी सेकेंडरी तक आते आते देखो कितना ड्रॉप आउट हो गया। यानी ये वो बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं बच्चे, केवल सेकेंडरी तक ही पढ़ रहे हैं। और जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो हायर एजुकेशन में तो इससे भी बुरी स्थिति है। ठीक है, आज के लिए मैं समझता हूँ काफी है इस क्लास के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचेगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस सर। यस सर।